رضان فیری ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پراسرار اور خوبصورت سلطنت میں قلب اہلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی، لیکن اس کی زندگی ویسی نہیں تھی جیسی عام طور پر شہزادیوں کی ہوتی ہے۔ قلب اہلا کا دل سونے جیسا تھا، لیکن وہ بچپن ہی سے اپنی شکل و صورت کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس خوبصورت محل اور چمکدار لباس کے قابل نہیں ہے۔ جب بھی وہ محل سے باہر عوام میں جاتی، لوگ اسے دیکھ کر عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کچھ لوگ دبی زبان میں اس کا مذاق اڑاتے اور کچھ اسے بدشگن تک کہہ دیتے۔ ایک دن سلطنت میں ایک بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ قلب اہلا نے ہمت کی اور ایک سادہ سا دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکلی۔ اس نے سوچا کہ شاید آج کوئی اسے نہیں پہچانے گا، مگر بدقسمتی سے وہاں موجود کچھ شرارتی لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کے چہرے کی سخت کو لے کر سخت الفاظ کہے۔ وہ سب ان پر ہنسنے لگے۔ قلب اہلا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی دوڑتے ہوئے محل واپس آئی اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بہت روئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کبھی کسی کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکے گی۔ اسی رات اسے محل کے ایک پرانے حصے میں ایک پراثر کتاب ملی۔ اس کتاب میں چہرے کو سنوارنے اور قدرتی رنگوں سے حسن پیدا کرنے کے پرانے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ قلب اہلا نے طے کر لیا کہ وہ اب کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دے گی۔ اس نے رات بھر محنت کی۔ مختلف جڑی بوٹیوں اور رنگوں سے اس نے ایک ایسا نقاب میک اپ تیار کیا جو اس کے چہرے کے ہر داغ کو چھپا دیتا تھا۔ جب صبح ہوئی اور اس نے آئینہ دیکھا تو وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ اب ایک ایسی حسین شہزادی لگ رہی تھی جس کی مثال پوری سلطنت میں نہیں تھی۔ قلب اہلا اب نئے اعتماد کے ساتھ محل سے باہر نکلی۔ وہی لوگ جو کل اس کا مذاق اڑا رہے تھے آج اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہر طرف اس کے حسن کے چرچے شروع ہو گئے۔ اسی دوران اس کی ملاقات عباس سے ہوئی۔ عباس ایک ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جو نہایت سنجیدہ اور عقل مند تھا۔ جہاں باقی لوگ صرف قلب اہلا کا نیا چہرہ دیکھ کر تعریف کر رہے تھے، عباس کی نظروں میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ وہ لوگوں کے ظاہری روپ سے زیادہ ان کی باتوں اور فطرت پر غور کرتا تھا۔ میلے کی بھیڑ میں عباس نے دیکھا کہ قلب اہلا اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود تھوڑی سہمی ہوئی ہے، مگر اس نے قلب اہلا کو اگنور کیا اور جس کام سے آیا تھا وہ کر کے چلا گیا۔ قلب اہلا نے اپنا چہرہ تو بدل لیا تھا، مگر کیا وہ اپنا ڈر بھی بدل پائے گی؟ اور کیا عباس صرف اس کے اس نئے روپ کا دیوانہ ہوگا یا اس کے پیچھے چھپے دکھ کو پہچان لے گا؟ قلب اہلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پرانی پہچان پیچھے چھوڑ کر رائل اکیڈمی آف آرٹس میں داخلہ لے گی، جہاں کوئی اسے پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے نئے روپ میک اپ کو اتنی صفائی سے اپنایا کہ اب وہ کسی مسیحا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسکول کا پہلا دن۔ جب قلب اہلا نے اکیڈمی کے بڑے دروازے سے اندر قدم رکھا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ طلباء اور استاد سب اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ شاید لوگ اب بھی اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اس بار لوگوں کی آنکھوں میں مذاق نہیں بلکہ حیرت اور تعریف تھی۔ جب وہ اپنی کلاس میں داخل ہوئی تو استاد نے اس کا تعارف کروایا اور اسے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کرسی کے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکا خاموشی سے کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ یہ عباس تھا۔ عباس، کلاس کا خاموش شہزادہ۔ عباس اس اکیڈمی کا سب سے ہوشیار اور پراسرار لڑکا مانا جاتا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا۔ جب قلب اہلا اس کے برابر میں بیٹھی تو اس نے ایک لمحے کے لیے کتاب سے نظر ہٹائی اور قلب اہلا کو دیکھا۔ قلب اہلا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ عباس کو دیکھا۔ عباس نے پھر اگنور کرتے ہوئے دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ قلب اہلا بھی چپ ہو کر بیٹھ گئی اور سب کو دیکھنے لگی۔ بریک کے دوران کچھ لڑکیاں قلب اہلا کے پاس آئیں اور اسے دوستی کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ اس کے حسن اور اس کے لباس کی تعریف کر رہی تھی۔ قلب اہلا مسکراتی تو رہی، لیکن اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں گھوم رہی تھی جب لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ اسے ہر وقت یہ ڈر محسوس ہو رہا تھا، اگر انہوں نے میرا مذاق اڑایا، اگر کسی نے میری پرانی تصویر دیکھ لی تو کیا ہوگا؟
क्या ये लोग मुझसे दोस्ती कर रहे हैं या मेरे इस नए चेहरे से? क्लास के बाद कल्बे अहला गलती से अपनी पुरानी डायरी वहां छोड़ गई, जिसमें उसने अपने पुराने दुख और बिना मेकअप वाली कुछ खाके बनाए हुए थे। जब वो वापस लेने आई तो उसने देखा कि क्लासरूम खाली था। सिर्फ अब्बास वहां बैठा था और उसके हाथ में कल्बे अहला की वही डायरी थी। कल्बे अहला के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सोचा कि बस अब मेरा राज खुल गया और ये लड़का भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ाएगा। अब्बास ने डायरी बंद की और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तुम्हारी है। इसमें जो खाके हैं वो बहुत गहरे हैं। इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, बल्कि वैसा होता है जो वो महसूस करता है। और फिर चला गया। अब्बास के इन अल्फाज ने कल्बे अहला को सोच में डाल दिया। क्या अब्बास ने उसे पहचान लिया था या वो सिर्फ उसके अंदर छुपे दुख को महसूस कर रहा था? कल्बे अहला को एकेडमी में आए अब कुछ दिन गुजर चुके थे। हर गुजरते दिन के साथ उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, मगर उसके दिल का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एकेडमी का सबसे जिंदा दिल और हर दिल अजीज लड़का शान था। शान अब्बास का बचपन का बेहतरीन दोस्त था, मगर फितरत में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जहां अब्बास खामोश और संजीदा था, वहां शान अपनी शरारतों और दोस्तों के साथ महफिल जमाने के लिए मशहूर था। जब शान ने स्कूल में कल्बे अहला को देखा तो वो उसके पुरअसरार हुस्न का मुरीद हो गया। वो बार बार अब्बास से कहता, यार अब्बास, ये नई लड़की कोई मामूली इंसान नहीं लगती, ये तो किसी परीजाद की तरह हसीन है। अब्बास सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, क्योंकि उसकी दिलचस्पी चेहरों में नहीं, इंसान की रूह में थी। एक शाम कल्बे अहला ने सोचा कि वो अपने पुराने पसंदीदा मैजिक एंड कॉमिक स्टोर जाएगी, क्योंकि शाम का वक्त था और उसे लगा कि वहां कोई पहचानने वाला नहीं होगा। इसीलिए वो बगैर मेकअप के एक ढीली सी हुडी पहनकर और अपना चेहरा छुपाकर निकल गई। हालांकि अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अगर किसी क्लास फेलो ने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर क्या? वो पुरानी कॉमिक्स देखने में इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है। अचानक किसी ने उसके हाथ से वही किताब पकड़ी जो वो देख रही थी। कल्बे अहला ने डरकर पीछे देखा तो सामने अब्बास खड़ा था। कल्बे अहला की सांस रुक गई। उसने फौरन अपना हुड मजीद नीचे कर लिया और वहां से भागने की कोशिश की, मगर अब्बास ने उसे पहचान लिया था। उसने नर्म आवाज में कहा, तुम वही हो ना जो मेरी क्लास में बैठती हो? तुम बगैर मेकअप के भी खूबसूरत लगती हो, मगर मैं तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? कल्बे अहला ने झूठ बोलने की कोशिश की, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मगर अब्बास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और सच बोलूं तो तुम इस रूप में ज्यादा सच्ची लग रही हो। अभी कल्बे अहला और अब्बास के दरमियान ये बातें हो ही रही थी कि बाहर से शान की आवाज सुनाई दी। वो अब्बास को ढूंढता हुआ उसी स्टोर की तरफ आ रहा था। अब्बास, ओए अब्बास, तू यहाँ क्या कर रहा है? शान स्टोर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कल्बे अहला के होश उड़ गए। अगर शान ने उसे इस हाल में देख लिया तो कल पूरी एकेडमी में उसका मजाक उड़ेगा और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने खौफजदा नजरों से अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने उसकी आंखों में छुपे डर को महसूस कर लिया। इससे पहले कि शान अंदर दाखिल होता, अब्बास ने तेजी से कल्बे अहला को एक बड़ी किताबों की अलमारी के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर निकलकर शान का रास्ता रोक लिया। चलो शान, यहाँ कुछ नहीं है, हमें देर हो रही है। अब्बास ने शान का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। शान थोड़ा हैरान हुआ, मगर अब्बास के साथ चला गया। कल्बे अहला वहां खड़ी कांप रही थी। जब वो दोनों चले गए तो उसने सुकून की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब्बास ने उसकी मदद क्यों की। वो तो उसका राज सबको बताकर उसे रुस्वा कर सकता था। उसी रात कल्बे अहला ने आईने में अपने असली चेहरे को देखा। पहली बार उसे अपने उस चेहरे से नफरत नहीं हुई, बल्कि उसे अब्बास के वो अल्फाज याद आए, तुम इस रूप में ज्यादा सच्ची लग रही हो। सालों गुजर गए और वक्त जैसे पर लगा कर उड़ गया। रॉयल एकेडमी में अब कल्बे अहला सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने नर्म लहजे की वजह से सबकी चाहीती बन चुकी थी। चलो कैंटीन में जाए और थोड़ा खाना खाए। मगर इस सारी मकबूलियत के पीछे उसका और अब्बास का एक खामोश राज था, जो वक्त के साथ साथ एक गहरे रिश्ते में बदल गया था। वक्त की धूल ने कल्बे अहला के डर को थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि अब्बास ने उन सालों में कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका असली चेहरा जानता है।
अब्बास ने हमेशा उसका साथ दिया, कभी लाइब्रेरी में मुश्किल सबक समझाते हुए तो कभी दोस्तों की भीड़ में उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हुए। Okay. अकेडमी का आखिरी दिन था। हर तरफ रंग और रोशनियां थीं, मगर फिजा में एक उदासी भी थी, क्योंकि सब दोस्त बिछड़ने वाले थे। कल्बे अहला मगर उसका दिल बोझिल था। वो जानती थी कि आज के बाद शायद वो अब्बास से कभी न मिल पाए। अब्बास, जो हमेशा से अपने जज्बात छुपाने में माहिर था, आज अंदर से टूट रहा था। वो कल्बे अहला से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। उसके लिए कल्बे अहला का वो चेहरा जो वो दुनिया से छुपाती थी, सबसे ज़्यादा हसीन था। अब्बास ने कई बार सोचा कि वो उसे बता दे कि वो उसके हर रूप से प्यार करता है, मगर उसे डर था कि कहीं कल्बे अहला ये ना समझे कि अब्बास उस पर एहसान कर रहा है या उसका राज जानता है। पिछली तरफ बाग में शान ने अब्बास के कंधे पर हाथ रखा। शान अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब्बास, आज आखिरी दिन है। अगर आज भी नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाएगा। मैं जानता हूँ तो उससे कितनी मोहब्बत करता है। अब्बास ने गहरी सांस ली और कहा, शान, वो मुझसे डर जाएगी। वो समझती है कि मैं उसके सिर्फ इस नकाब को पसंद करता हूँ, जबकि मैंने तो उस दिन स्टोर में ही अपना दिल उसे दे गया था जब उसने मेकअप नहीं किया था। सूरज ढल रहा था जब कल्बे अहला महल की पुरानी दीवार के पास खड़ी थी। अब्बास वहाँ पहुँचा। दोनों खामोश थे। कल्बे अहला ने दबी आवाज़ में कहा, अब्बास, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अब्बास ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में आज भी वही पुराना डर और थोड़ी सी उम्मीद थी। अब्बास ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर रुक गया। उसने सिर्फ इतना कहा, कल्बे अहला, तुमने इस दुनिया के लिए नकाब पहना है, मगर मेरी आंखों ने हमेशा तुम्हारी रूह देखी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, चाहे तुम जहाँ भी रहो। वो इजहार मोहब्बत करने ही वाला था कि अचानक एकेडमी का घंटा बजा और सब तलबा को हॉल में बुलाया गया। Say cheese, everyone. Smile brightly. 1, 2, 3. Click! That's a perfect picture. Mara School, sabse acha. I can't believe he did that. I know, it was so funny. Wait for me. स्कूल खत्म होने के बाद कल्बे अहला के दिल में अब्बास के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर उसे लगा कि अब्बास शायद उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है। उसके दिल में ये डर बैठ गया कि अब्बास कभी उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता जिसका चेहरा दागदार हो। इस खामोश दुख को लेकर वो मुल्क छोड़कर चली गई और सालों तक मेहनत की। साल गुजर गए। कल्बे अहला अब वो सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। वो एक कामयाब और बाहिम्मत बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उसने दुनिया को जीत लिया था, मगर इसका दिल आज भी कहीं न कहीं अब्बास को ढूंढता था। उसी मुल्क में शान भी उसके साथ था। शान अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था और कल्बे अहला के हर मुश्किल वक्त में उसका सहारा बना। शान जानता था कि कल्बे अहला अब्बास को पसंद करती थी, मगर सालों की खामोशी ने सबको ये यकीन दिला दिया था कि अब्बास आगे बढ़ चुका है। जब कल्बे अहला को यकीन हो गया कि अब्बास की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं, तो उसने अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देने का सोचा। शान, जो हमेशा से उसका खैरख्वाह था, उसने कल्बे अहला का हाथ मांगा। कल्बे अहला ने थक कर और अपनी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए शान से शादी का फैसला कर लिया। शान ने खुशी खुशी इसे कबूल किया और दोनों की शादी हो गई। इधर दूसरी तरफ अब्बास भी एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था। वो इन सालों में सिर्फ कल्बे अहला के लिए तड़पता रहा। उसने दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए की ताकि वो कल्बे अहला के काबिल बन सके और हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता सके। वो कल्बे अहला की तलाश में उसी मुल्क आया। उसके हाथ में एक अंगूठी थी और दिल में ढेरों उम्मीदें। वो सीधा कल्बे अहला के दिए गए पुराने पते पर उसके घर पहुंचा। उसने सोचा था कि आज वो सारे पुराने राज खत्म कर देगा और उसे बताएगा कि वो उसके हर रूप से कितना प्यार करता है। जब अब्बास घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर सजा हुआ था। सामने ही कल्बे अहला और शान एक साथ खड़े थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एहतराम था। अब्बास का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे पता चला कि जिस लड़की के लिए वो सालों तक तड़पा, वो अब उसके बेहतरीन दोस्त की शरीके हयात बन चुकी है। कल्बे अहला ने जब अब्बास को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी चमक आई, मगर उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। अब्बास ने अपनी तकलीफ को एक मुस्कुराहट के पीछे छुपाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी।
वो बिना कुछ कहे अपना अधूरा प्यार वहीं छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। द एंड। कहानी का इख्तिताम इस सबक पर हुआ कि बाज़ दफ़ा दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मिल जाती है, मगर मोहब्बत की बाजी हार जाती है। स्कूल के दिन थे, हंसी थी हर बात में, तेरी मेरी दोस्ती थी हर मुलाकात में, छुप छुप के तुझे देखा करते थे हम, दिल की बातें थी सिर्फ ख्यालात में। पर वक्त ने लिखी कुछ और कहानी, तू किसी और की हो गई दीवानी, मेरी मोहब्बत रह गई बस यादों में, ना बनी तू मेरी जिंदगानी।